So we did this meditation live sessions on Zoom and then on YouTube live, and I think it was a time well spent in lockdown. Morning and evening we did 2 sessions for a long time, and during these sessions we also had a lot of talks on topics of life, on topics of desires and law of attraction, and dukh, man ka bhar, decoding desires, law of attraction, moksha, etc. A lot of things, but all of them pertaining or relating with our real life. All of these days, it's 50 days, I've tried to summarize now in this video. So this is a 1 hour summary session I had in the end, and I thought I'll share it with everybody. So this was a 1 hour video, but I divided it into 3 sessions. They have been meticulously designed into 3 parts, and life is a fully paid holiday as a concept I've not talked about in these 3 videos, but surely enough in the end of the 3rd video you'll see me again here, and I'll talk about what this is. Life is a fully paid holiday. See all the 3 videos, they're not very long. टाइम लगाइए, एक ही साथ सीरीज़ में मत देखिए. सी वन ऑन वन डे, मे बी सेकेंड ऑन द सेकेंड डे एंड द थर्ड, एंड देन ऑल्सो कीप ऑन इंट्रोस्पेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देन यू सी what can you do about it. As I experimented all that I learned in my lab here, I have always encouraged everybody to experiment those things there. We talked about what is meditation, we talked about what meditation is not, and a lot of other things. Lot of things which were totally relevant, and more importantly how meditation can be done for a person who's busy in the rat race, doing business, doing a job or anything else. How on the go meditation can be done and how that is relevant. So see all of those things. I'm sure one thing is there. See, I'm not a bhagwa pehna hua kapda wala sadhu. With all due respect to them, I'm a person like you. I have my EMIs, I have my business, I have my worries about uncertainty about business, about income. I have a family. I am totally living a life like you. I'm from within you, all of you. So you cannot tell me one thing that isko to pata nahi, ye to sadhu hai. That is the advantage I think I have, and that is the advantage I want you to take from me, that I'm a person like you. I totally understand your lifestyle and your pain. And a lot of people, I do spiritual counseling also, and I see a lot of people going through much pain which is similar to mine, and we talk about it. So let's meet over these 3 videos. Let's kind of introspect on whatever is being said, and in the end I'll talk about what life is a fully paid holiday means. In the end I'll summarize the whole topic once again. So God bless you, great, and have a wonderful time watching these 3 videos. Goodbye for now. Alright, so we started with CCTV meditations. The sessions were 10:30 morning, 10:30 evening, and we did this CCTV meditation. So CCTV meditation is basically a process of looking at yourself impartially. Just like a CCTV looks at things, whatever is there in the scope of CCTV, it keeps on looking at those things, and it doesn't have a judgment, it doesn't have a partiality kind of a thing towards anything. It doesn't have a bias or a stereotype that this person I'm finding good, I'll show him in a better way, and somebody I don't like, I'll show him very ugly. शीशा भी ऐसे ही करता है, जो सामने आता है वो जैसा होता है वैसा दिखा देता है. तो उसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि ये ऐसा होगा ये वैसा होगा. whatever it is there. Similarly एक्सटर्नल सिचुएशन तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो चेंज होती रहेगी, जैसे भी अपने आप आता रहेगा, कुछ ना कुछ अपने आप आता रहेगा. बट व्हाट वी सी इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इनर रिएक्शन दैट हैपन्स. समटाइम्स इट इज अ लॉट ऑफ, समटाइम्स इट इज लेसर, बट इट इज कंपल्सरी दैट देयर इज एन इनर रिफ्लेक्शन टू वट एवर हैपन्स आउटसाइड. द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, इफ एट ऑल देयर इज एनी पर्पस, इज ओनली दिस, that you become a watcher, दर्शक, चेतना भाव, इस तरह की जो हम बातें करते हैं वो यही है कि आप चेतन रहें इस बात को कि आप अंदर से क्या कर रहे हैं. बाहर वाले के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. बाहर वाला कैसे भी रिएक्ट कर सकता है, कैसे भी बात कर सकता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर. तो फिर क्या करें?
कुछ नहीं, आप अपने आप को अंदर देखो, आपके अंदर गुस्सा आया, एक बार आप, जब आपकी आदत हो जाएगी, शुरू में नहीं, पर जब आप कोई CCTV की तरह अपने आप को देखने की आदत हो जाएगी, देन यू विल सी क्लियरली दिस इज़ द वे आई एम रिएक्टिंग। उसने ऐसा बोला पर मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है भाई, पता नहीं क्यों आ रहा है, पता नहीं इसलिए, क्योंकि शुरू में तो समझ में आएगा कि उसने ऐसा बोला इसलिए गुस्सा आ रहा है, बट वॉट एवर मेडिटेशन, स्पेशली द इंटेंस मेडिटेशंस वी डिड, पंच तत्व मेडिटेशंस वी डिड, समवेयर वी रियलाइज, आई थिंक हम कहीं ना कहीं इस बात को फील भी कर पाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इस शरीर के बगैर भी अपने आप को देख पा रहा है। अगर ये मेडिटेशंस आपने डीपली करी है, इंटेंसली करी है, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू you would have felt those things, that you are so different from the body, and then you realize I am not Anurag Mehta, I am just a body, a khilona which is made of non-living substances, chemical substances, all of them, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, which is almost 99% of your body, and the rest is all those minerals and chemicals that we have put together. All of these are available in a chemical lab, but they are arranged in an order to make a toy which is still non-living till the time you are there. When you are there, this body is moving. When you are not there, this body has to be taken by 4 people to the Shamshan or the Antim Yatra, anywhere. The same body which was so very fit, sometimes people are very fit and they just pass away. The same body which you said, I met him yesterday, yaar, he was all fine, all right, कुछ भी नहीं हुआ था इनको, suddenly today is not there. What missing is there in that person which is not missing in you right now is the only purpose of meditation, is what we learned. और उसको देखने के लिए कि वो कौन है, मैं ये देखता रहूँ कि मेरे अंदर रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, तो मेरे को पता चलेगा ये बॉडी जब नश्वर है, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ किसी भी रिएक्शन को लेकर। मैंने रियलाइज़, और हमने अभी जो 2 दिन में अहम ब्रह्मास्मि का जो किया उसके ऊपर भी मैं बाद में आऊँगा। अहम ब्रह्मास्मि में हमने देखा, मैं तो बिल्कुल ही आई एम द ड्रॉप इन द ओशन, बट आई एम द ओशन, द ड्रॉप इन द ओशन इज द ओशन इटसेल्फ। एंड ये एक बड़ा स्टूपिड आइडिया है ये सोचना कि वो ड्रॉप ऑफ द ओशन में डूब जाएगा। हाउ स्टूपिड इज दैट, बट वी लिव विद दोज काइंड ऑफ थॉट्स बिकॉज हमारा चाइल्डहुड कंडीशनिंग, हमारा सोसाइटल कंडीशनिंग ऐसा ही है, वी कांट हेल्प इट। So that is there. ओके, ये हो गया। तो CCTV मेडिटेशन में हमने देखा कि पहली बात, मेडिटेशन का कोई पर्पस नहीं है। हमने ये फर्स्ट डे समझा था और आगे भी कई बार रिएटरेट किया मैंने, मेडिटेशन डजंट हैव अ पर्पस। मेडिटेशन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हैं, स्ट्रेस रिमूवल, एंजाइटी रिमूवल, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल बैलेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, इम्यूनिटी, ऑल दीज आर बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। मैं भी आपको बताया, मैं PhD कर रहा हूँ मेडिटेशन पे, और ये सब मैंने रिसर्च में भी देखा है, और हज़ारों सालों से हम इंडियंस को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। वो अलग बात है कि हम लोग अभी करना थोड़ा छोड़ दिए हैं, इसलिए कि मेडिटेशन कौन करे, होता नहीं है, दिमाग में थॉट्स टिकते नहीं हैं। और हमने ये बात किया कि दिमाग में थॉट्स को रोकने का कोई पर्पज़ ही नहीं है, वो सारा गलत प्रचार है। कई लोगों ने मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप पे भेजा ये चीज़ कि भाई आपने ऐसा बताया तो मेरा मेडिटेशन में रुचि भी बैठा और मैं अब मेडिटेशन कर भी पा रहा हूँ, और कहीं मैं अपने आप को थॉटलेस स्टेट में अपने आप ले जा पा रहा हूँ। क्योंकि थॉटलेस स्टेट जो है वो अपने आप आएगा, वो करने से नहीं आएगा। माइंड को आप जितना बोलेंगे वो चीज़ तो खास करके नहीं करेगा। तो मेडिटेशन का ये पर्पस नहीं है, जो भी हम उसके बेनिफिट्स देखते हैं वो सारे बेनिफिट्स मेडिटेशन का बाय प्रोडक्ट है। फिर हमने ये देखा कि भाई 15 सेकंड की मेडिटेशन करने की कोशिश करी, कैसी कि 15 सेकंड थॉटलेस रहेंगे। 15 सेकंड भी थॉटलेस ही रह पाते, मन कुछ ना कुछ लेके आ जाता है। तो हमने ये देखा भैया ये रिलेशनशिप क्या है माइंड के साथ हमारा, बॉस कौन है, कौन होना चाहिए, हु शुड बी द बॉस, आई शुड बी द बॉस, वाई आई एम नॉट द बॉस। इसके ऊपर तो चिंतन करना पड़ेगा, ये चिंतन का विषय है और इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, और इसको भी CCTV में देखते रहें, बिकॉज सोचने से कुछ नहीं होगा। इसका चिंतन करते रहें और हम देखेंगे कि भाई मन को तो हम जीत ही नहीं सकते। अब मन क्या है, मन ईश्वर का बनाया हुआ एक ऐसा मशीन है जो हमको इस कैरेक्टर में इन्वॉल्व रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसा कैरेक्टर,
भाई मैं जो अनुराग मेहता का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो अनुराग मेहता का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, मैं ये शरीर तो नश्वर है ना, पर मैं क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ। वो कैसे? अनुराग मेहता बन के। बाकी तो शरीर ये एवर चेंजिंग है। हमने ये भी बात किया कि जब से मेडिटेशन अभी सेशन स्टार्ट किया, अभी में 10-15 मिनट 15 मिनट जितना भी हुआ है, उसके अंदर में ही ये शरीर में मिलियंस ऑफ सेल्स हैव बीन रिसाइकल्ड। तो ये शरीर वो है ही नहीं जो यहाँ बैठा था 10:30 बजे, ये शरीर तो बदल गया। और 1 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, ऑलमोस्ट द एंटायर बॉडी, ऑल द सेल्स रिसाइकल इन द होल ईयर। तो ये आपका 2019 मॉडल बैठा है यहाँ पे, 2020 मॉडल नहीं है। इट इज़ नॉट द लेटेस्ट, द होल बॉडी इज नॉट द लेटेस्ट, फ्रेशेस्ट, न्यूएस्ट, अपग्रेडेड वर्जन। ये हर वक्त नित्य चेंज हो रहा है। तो ये बॉडी तो मैं हुई नहीं, मेरे हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो भी मैं तो मैं ही रहूँगा। तो ये बॉडी तो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं कौन है ये जो मैं ही रहूँगा? ये वो दर्शक है जो अपने आप को अंदर से देख रहा है, वही जो सीसीटीवी से अपने आप को देख रहा है। सीसीटीवी से देखना आपको आपकी रियलिटी के नज़दीक लेके जाएगा, और जहाँ आप अपनी रियलिटी के नज़दीक जाएंगे वहाँ आपको दिखेगा भैया शरीर से रिलेटेड जो भी कुछ है उससे मेरा को कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे मैं मन के रिलेशनशिप को यहाँ से ऐसे समझूँ कि मन तो कुछ भी करता रहेगा। जब मैं समझ गया कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, तब कहीं मेरे मन में ऐसा आएगा, अच्छा मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरी बातों को सुनने से नहीं आएगा, ये आपको करते रहना पड़ेगा। मेडिटेशन करते करते, स्पेशली आप पंचतत्व मेडिटेशन करें तो आपको और ज़्यादा वो फीलिंग आएगी। आप वो करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। ये मन का जितना भी एग्जिस्टेंस है, इस बात को समझें, मन का जितना भी एग्जिस्टेंस है वो शरीर के डिमांड्स को लेके उसका पूरा का पूरा अस्तित्व है। शरीर की डिमांड कैसी है? सर्वाइवल बेस्ड है। उसको जो भी चाहिए, खाना पीना, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, जो भी चाहिए सर्वाइवल के लिए चाहिए। सोशल एग्जिस्टेंस, सोशल स्टेटस, मनी, वट एवर इट वांट्स फॉर सर्वाइवल। और मेरे को ये समझ में आया सर्वाइवल तो शरीर का है, मेरा तो है ही नहीं। तो मैं इतना मन के वश में क्यों आता हूँ? तो भैया ये तो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूँ, ये चीज़ समझ में आनी ज़रूरी है कि मैं अपना काम करूँ, शरीर और मन अपना काम कर रहे हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल ये अलग अलग है। भले जुड़ के काम हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो आप सुन रहे हैं मेरी बात, वो जुड़ के ही हो रहा है सारा कुछ, पर है ये अलग अलग। तो माइंड बॉडी अलग, सोल अलग, ये समझ में आया। तो सोल अलग है तो मैं अपना काम अलग करूं, माइंड बॉडी जो कर रहे हैं करने दो। तो क्या मतलब हुआ? सीसीटीवी में माइंड को देखते रहो, बॉडी अपने आप जैसा भी माइंड के हिसाब से चल रही है चलती रहेगी। माइंड में विकार आते हैं, नेगेटिविटी आती है, टेंशन, वरी, स्ट्रेस आता है, तो बीमारियां भी होती हैं। माइंड और बॉडी का तो रिलेशन है आपस में। मन खुश होता है, बॉडी में एनर्जी आ जाती है। मन खराब होता है तो बॉडी वीक हो जाती है। मन में गुस्सा आया तो बॉडी में एकदम टाइटनेस आ जाती है। माइंड बॉडी का डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। बॉडी थक गई तो मन भी थक जाता है। कई बार ओवर ईटिंग कर लिया, बॉडी को टाइट लग रहा है तो मन भी एकदम ऐसा भारी भारी लगता है मन को। तो ये माइंड और बॉडी है। और मैं कौन हूँ? उन दोनों को देखने वाला। देखिए ये बात पहली बार में समझ नहीं आएगी, आपने बहुत बार मेरे साथ मेडिटेशन करी है, और ये बात आपको रिएटरेट करते रहना पड़ेगा अपने आप को। मैं कौन हूँ? माइंड और बॉडी को देखने वाला, जिसका कोई नाम नहीं है। वो जो ये नाम देगा कि मैं कोई आत्मा हूँ या कुछ भी नाम देंगे, वो भी मैं और आत्मा दो हो गया ना। जो रियल है उसको तो अपने आप को नाम देने की भी ज़रूरत नहीं, वो तो दिख रहा है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप समझें जिसके बारे में मैंने आज तक कभी बात नहीं करी, वो ये है दैट यू आर द स्काई। उस स्काई में बादल है, कभी कभी चले गए। स्काई का अटैचमेंट नहीं है। स्काई माने स्पेस। यू आर द स्पेस इन विच एवरीथिंग एग्जिस्ट्स एंड पासिस अवे। बादल आए, चले गए, बारिश आई, चली गई, आंधी आई, तूफान आया, अर्थक्वेक भी आया, साइक्लोन आया, स्पेस में ही हुआ। जहाँ अर्थक्वेक आया उस स्पेस में बहुत कुछ होके ख़त्म हो गया, लेकिन स्पेस तो वहीं की वहीं है। अंदर बहुत कुछ हुआ पर स्पेस तो वही है। स्पेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कुछ अच्छा हो गया, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव हो गई आपसे, पर स्पेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा हुआ लेकिन फिर कुछ नीचे आ गया, स्पेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो स्पेस हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यू आर द स्काई, रेस्ट एवरीथिंग इज़ द वेदर।
Can you understand this? Because when you understand this, understand तो पहला स्टेप है. जब आप इसको जी पाएंगे then you are free. But understanding is your key towards freedom. Understand that you are just the sky. तो यहाँ पे गीता में बोला कर्म कर फल की चिंता मत कर, और वो तो हमसे होता ही नहीं है. सो कर्म कर फल की चिंता मत कर. भैया ये तो मुश्किल है. कर्म कर फल की चिंता मत कर, ऐसे कैसे होता है? Probably this confusion has not been cleared by the learned ones in religion, and I feel that is one mistake people have done, because people now these days, people like us, people like me and you, are really questioning this, and still they're not getting the right answer, and they're kind of discarding this statement, while this statement is the ultimate Sanatan Satya of life. How? You see it in the second video. God bless you. Goodbye.